Ever found yourself torn between front end or the back end development, or perhaps curious about mastering both? तू हंसना भाई. Quiet on the set. Camera speed. Sound production, take one. Myself Hamza Shehzad, and we are having Javeria Abid. Please welcome him. Welcome her. Roll sound. Rolling. Sound production, take two. Myself Hamza Shehzad, and we are having Javeria Abid. She's a full stack developer. Please welcome her. Javeria, kindly introduce yourself. So it's me, Javeria Abid. I am a CS graduate from Iqra University, and I am a full stack developer. I did development in both front end and back end, and I specialize in making user-friendly applications. Okay. So Javeria, you are a full stack developer. क्या आप अपने हमारे audience को बताएंगे what a full stack developer is in easy words? Okay, so in easy words, if we combine front end and back end development, so we can say front end plus back end is equals to full stack development. Okay. Yeah. So how did you start it? आपका start कैसा रहा और क्या मतलब आपने front end से start किया back end से या full stack development से किस तरह से आपने? Okay, so after my graduation, I started as a front-end web developer. So I take a start of my career as a front-end development because I like to create a user-friendly application. I like to create and design application that interact with users and fulfill users' need. And after that, in my career, I pursue my career towards back-end development as well. Okay, Javeria, as a female, as a girl, what do you think? मतलब जो हमारे पास डेवलपमेंट में है, डेवलपमेंट साइड पे मतलब फीमेल्स क्यों कम है कंपैरेटिवली मेल्स की निस्बत? Okay, so I think females are afraid of doing development because what I felt in our universities, our teachers didn't appreciate us more. They always degrade us like development is much a difficult task and development is this and development is that. You didn't get a job in Pakistan. So that's why some of the females skip in half of their graduation development. But I think development is the best field. जिस तरह से हम लोगों की आजकल टेक्नोलॉजी वास्ट होती जा रही है और जितनी कंप्यूटर साइंस ने AI ने एडवांसमेंट की है इन सब में, तो डेवलपमेंट बहुत अच्छी है और अब कुछ भी मुश्किल नहीं है बिकॉज ऑफ AI टूल्स. अब आई थिंक के डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है. अगर हम बैक टू ईयर्स देखें तो तब तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी बिकॉज बहुत ज़्यादा हमारे पास टूल्स नहीं होते थे. गूगल के सर्च हम इतनी ज़्यादा एडवांस तरीके से नहीं कर सकते थे, लेकिन अब तो AI टूल्स आ गए हैं. तो आई थिंक अब जो वर्क है वो मच ईजियर है. ओके. या ये तो मतलब मेरा ख्याल है कि हर किसी को जो है ना आइडिया है कि चैट GPT और अदर AI टूल्स जो है ना काफ़ी हद तक हेल्पफुल हैं. तो आप किस हद तक मतलब इसको कंसीडर करती हैं कि इससे आपको कितना वर्कलोड कम हुआ है या कितना आपका वर्क बूस्ट होता है इससे कंपैरेटिवली पहले की निस्बत? क्योंकि आई थिंक सो AI जो है, आप कब से AI के ऊपर यानी कि वर्क मतलब AI के ऊपर शिफ्ट हुए हैं यानी कि आपका वर्कलोड AI पे शिफ्ट हुआ है? Okay, so back in 2023, I started using ChatGPT and AI. But I think कि अगर आप specialized नहीं हैं like you, if you are know nothing about development, तो आप जो है वो ChatGPT से नहीं पूछ सकते कि ChatGPT solve my problem or make a website for me. ChatGPT unable to do that. ChatGPT I think it's a human. ठीक है, और अगर हम उसको अपना रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं बता रहे तो वो हमें रेलिवेंट आंसर नहीं देगा. अगर हम रेलिवेंट कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे तो हमें रेलिवेंट आंसर अपना कभी भी नहीं मिलेगा. तो ChatGPT भी आई थिंक यूज़ करने के लिए यू हैव टू बी एक्सपीरियंस्ड कि आप ChatGPT से क्या पूछ रहे हैं. अगर फॉर एग्जांपल आप पूछेंगे कि आप ChatGPT मुझे एक वेबसाइट बना दो, वो आपको बता तो देगा बट यू आर अनेबल टू डू दैट क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या करना है. और सेम लाइक मी, अगर मैं कहूँ ChatGPT से कि मुझे डिज़ाइनर बना दो तो ChatGPT अनेबल टू डू दैट. सो इट्स माई पर्सपेक्टिव. या अच्छा, आप हमें बताएंगे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट और जो स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट मतलब हमारे पास कुछ हैं जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट को लेके चल रहे हैं, कुछ बैक एंड डेवलपमेंट को लेके चल रहे हैं. एज यू आर टेकिंग द फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो कंपैरेटिवली एक्सपर्टीज के लिहाज से आपको क्या लगता है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट या बैक एंड डेवलपमेंट या जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो फ्रंट एंड डेवलपर उस चीज़ को जल्दी यानी कि कॉपी कर लेगा, गेट कर लेगा, या कंपैरेटिवली फुल स्टैक डेवलपर उस चीज़ को जल्दी से गेट कर लेगा?
सी इफ़ यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर है ना, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है फ्रंट एंड में, क्योंकि देखिए फ्रंट एंड जो है वो डिपेंडेंट है बैक एंड के ऊपर, राइट। तो अगर एज अ मी आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर, तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, मैं कहीं स्टक हो रही हूँ फ्रंट एंड के ऊपर, मेरी API में कोई इशू आ रहा है, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा कि मैं खुद ही बैक एंड पे जाके वो रिजॉल्व कर लूँ और देन उसको फ्रंट एंड पे फिक्स कर दूँ। तो जो एक डिपेंडेंसी है मेरी अदर पीपल पे, वो थोड़ी यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है। और एक्सपर्टीज या ट्रेंड्स के हवाले से मतलब आप किन चीज़ों को फॉलो करती हैं, कहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेट रहने के लिए न्यूज़ लेटर्स, ब्लॉग्स एक्सेट्रा किस चीज़ पर रिलाई करती हैं, या क्या आप हमारे ऑडियंस को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस चीज़ के ऊपर लेटेस्ट अपडेट्स टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग? I think LinkedIn is a platform. If you are following tech persons in LinkedIn and tech gurus, तो आपको पता लगता रहेगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है अकॉर्डिंग टू योर फॉलोइंग। और इसके अलावा अगर आपने YouTube किया हुआ है, आप उधर पॉडकास्ट देख सकते हैं। एंड सेकेंडली आप जो है वो, क्योंकि पॉडकास्ट भी आई थिंक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको एक ब्रीफली नॉलेज मिल जाता है। बट आई थिंक लिंक्डइन इज़ अ प्लेटफॉर्म कि वहाँ पे जो स्मॉल पोस्ट की फॉर्म में आपको पता लगता रहता है कि अच्छा इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है, क्या इन है। तो आई थिंक लिंक्डइन फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके अच्छा, मैं अपने एंड पे बात करूं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो है ना लिंक्डइन कंपैरेटिवली जो कि वर्ल्ड वाइड लिंक्डइन को कंसीडर किया जा रहा है ना, पाकिस्तान उसमें काफ़ी हद तक पीछे है। लिंक्डइन को आई थिंक सो जो कि मार्केटिंग और मतलब यू कैन से दैट मार्केटिंग से रेलिवेंट चीज़ें हैं ना, तो वो तो लिंक्डइन फिर भी कंपनीज और लोग यूज़ कर रहे हैं। बट डिवेलपर्स जो, यानी कि मेरे सर्कल में भी अगर कोई डिवेलपर्स है ना, तो वो लिंक्डइन को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। सो आप क्या इसके बारे में कहती हैं और आपका अपना क्या मतलब इसके बारे में सोचती हैं? Okay, so by nature, developers are shy and introvert. Mostly developers you have seen are shy and introvert by nature. But I think कि अब जो developers हैं वो इतने ज़्यादा shy नहीं हैं, वो extrovert भी हो रहे हैं, because development हमारी फील्ड ही ऐसी है कि जब तक हम बैठ के प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे डेवलपमेंट नहीं होगी। सो इसकी ये वजह है कि डेवलपर्स की लिंक्डइन अकाउंट बहुत कम होते हैं और वो बहुत ज़्यादा अपनी लिंक्डइन को अप टू डेट रखते हैं। सेकेंड इसकी ये रीज़न है कि जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम लोगों को इतना ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में गाइड नहीं किया जाता कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ करने हैं। उसके प्रोस कम बताए जाते हैं और कॉन्स हमें ज़्यादा बताए जाते हैं। तो आई थिंक ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, लेकिन अब की जो हमारी यूथ है तो वो तो काफ़ी लिंक्डइन पे, बिकॉज अब आई सीन के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जॉब कर रहे हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट कि वो रिमोट जॉब्स कर रहे हैं, वो लिंक्डइन पे रिमोटली अपने आवर्स जो हैं वो पूरे कर रहे हैं विद स्टडीज़। या सो आपकी अगर हम मतलब रूटीन लाइफ की बात करें, क्योंकि मैंने देखा है डेवलपर्स जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा कंजर्व और अकेले रहने वाले जो है ना, मतलब इस तरह की नेचर सुनी भी है और देखी भी है। तो व्हाट डू यू से, आपकी किस तरह की मतलब है कि बस अपना काम किया और बस दैट्स? ओके, सो अगर मैं अपनी नेचर के बारे में बताऊँ तो इफ़ आई एम डेवलपिंग तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मतलब ज़्यादा शोर हो। या आई एम यूज्ड टू वर्क एट इट। मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है और मैंने अपनी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ओवरकम किया है कि मैं मल्टीटास्किंग भी क्योंकि बहुत हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ मसला नहीं हुआ कि मैं डेवलपमेंट अगर कर रही हूँ और इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा शोर है तो मैं ना कर पाऊँ, राइट। लेकिन कभी कभार होता है ये कि डेवलपमेंट में हमारे पास बहुत ज़्यादा इश्यूज़ इस तरह के आ जाते हैं जो फिक्स नहीं हो रहे होते हैं। समटाइम्स हमारे पास बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इश्यूज़ आ जाते हैं, तो उस पर ये होता है कि आपको काम करना पड़ता है। लेकिन अदर देन डैट मैं सारी नॉर्मल रूटीन फॉलो करती हूँ जिस तरह से आप फॉलो करते हैं। देयर इज़ नथिंग न्यू। ओके अच्छा, रूटीन लाइफ में मतलब डेवलपर जो है कंपैरेटिवली मतलब क्या रूटीन और किस तरह से, मतलब जैसे आपने बताया ना मल्टीटास्किंग, तो व्हाट आर द टाइप्स या हॉबीज क्या फॉलो करती हैं? एक डेवलपर की कुछ यानी कि मतलब स्पेसिफिक होती हैं टू द मतलब जैसे उनका फील्ड है उससे रेलिवेंट ही वो रहता है, या मतलब किस तरह से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। डेवलपमेंट इज़ अ जॉब लाइक अदर जॉब्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि डेवलपर की रूटीन लाइफ अलग है एंड नॉर्मल पीपल की रूटीन लाइफ अलग है। मतलब मुझे ऐसा लगता है नहीं, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। बट या जिस तरह से हम दीज आर माई ऑफिस आवर्स, या तो मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि अपने ऑफिस आवर्स को फुली कंज्यूम करूँ, एंड इसके बाद जो मेरा टाइम होता है वो मेरा फैमिली टाइम होता है, एंड देन वो अपना मी टाइम होता है। उसमें जो भी मेरे अदर टास्क होते हैं मैं वो करती हूँ। मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, मैं बुक रीडिंग करती हूँ, सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करती हूँ जिस तरह से आप लोग यूज़ करते हैं। सो ऑल ऑफ दैट। ओके या
ओके, आप मार्केट के अंदर कौन सी, यानी कि ट्रेंडिंग में ये कह लें कि मार्केट में इन डिमांड लैंग्वेजेस हैं हमारे पास फुल स्टैक डेवलपमेंट में, फ्रंट एंड बैक एंड जो भी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो मार्केट में जो इन डिमांड है वो यही है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, उसके फ्रेमवर्क्स हैं लाइक नोड.js एंड रिएक्ट.js। तो जो मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज अभी टॉप पे है वो जावास्क्रिप्ट ही है फॉर मी। ओके जुवेरिया, आप मुझे बताएंगे कि व्हाट आर योर स्पेशलिटीज़, मतलब आपकी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक्सपर्टीज़ हैं, कौन सी लैंग्वेजेस या टूल्स आप रेगुलरली यूज़ करती हैं? Okay, so I'm working on JavaScript and framework like React.js and Node.js. ओके, Yeah. आप हमें बताएंगे कि जो हमारे पास यंग जनरेशन है जो कि फुल स्टैक डेवलपमेंट या फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कंपैरेटिवली मेल्स एंड फीमेल्स बहुत, तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी? किस लैंग्वेजेस के का उन्हें सजेस्ट करेंगी कि स्टार्ट में उनके लिए इजी हो और मार्केट में इन डिमांड हो और उनके लिए इजी हो, क्या आप सजेस्ट करेंगे? Okay, so सबसे पहले तो मेरी सजेशन यही होगी कि डू वट एवर यू वांट एंड अपने आप को कभी भी प्रेशराइज मत करें। जो डेवलपमेंट है वो कभी भी, अगर हम लोग ये सोचते हैं कि हमें वीक में या एक कोर्स करने के बाद आ जाएगी, अगर हम यूडेमी का एक कोर्स करें उसके बाद हम जो है वो प्रो डेवलपर बन जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बहुत ज़्यादा इसके अंदर फैक्टर्स होते हैं और इसमें टाइम लगता है। अब कुछ डेवलपर्स इस तरह के होते हैं कि वो जब अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो जब वो डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं और वो अगर लैग कर रहे होते हैं, फेल कर रहे होते हैं, फेलियर्स देख रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं बिकॉज समटाइम्स उनकी कोई हेल्प करने वाला भी नहीं होता। बट आई थिंक कि गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अब तो आपको किसी इन पर्सन की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है। मेक गूगल योर बेस्ट फ्रेंड। सो आप लोग गूगल से हेल्प लें एंड बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत हों, क्योंकि एक टाइम आता है फेलियर्स के बाद ही आपको सक्सेस मिलती है और डेवलपमेंट फील्ड ही ऐसी है। इनफैक्ट अब लाइक मैंने भी बहुत ज़्यादा फेलियर्स देखे हैं, मैंने भी बहुत ज़्यादा सक्सेस देखी है। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा स्टक भी हुई हूँ, लेकिन मैंने किया है बिकॉज आई लाइक टू डू दिस। तो अगर आपको पैशन है तो आप ज़रूर इस फील्ड में आए। या वैसे जुवेरी, कभी आपने सोचा है कि मतलब आपको डेवलपर नहीं मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए? Yeah, I like to be like a journalist in my early ages after when I did completed my intermediate. Okay. Yeah. बट आपको फिर रियलाइज हुआ नहीं? Yeah, नहीं, अब मुझे जो है वो डेवलपमेंट अच्छी चीज़ है। हाँ, मुझे कंप्यूटर साइंस कर लेना चाहिए। Okay. अच्छा, जो जॉब हंटिंग या सीवी के बारे में आप उनको कुछ सजेस्ट करें हमारे व्यूअर्स को? ठीक है। अच्छा, आई थिंक जो CV है वो ही आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है। अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर योर CV शुड बी योर इम्प्रेशन। आपकी CV इतनी रेलिवेंट हो कि जब आप इन हाउस जॉब के लिए जाएं, इंटरव्यू के लिए जाएं, तो जो आपका इंटरव्यूअर है, जो पर्सन है, वो आपकी CV से ही आपसे क्योंकि क्वेश्चनिंग होती है। तो आप अपनी CV रेलिवेंट बनाएं, इररेलिवेंट कुछ भी CV में ऐड मत करें। जो भी आपकी रेलिवेंट फील्ड है, बेशक आपका 1 मंथ का एक्सपीरियंस है, आप उसको 1 मंथ ही लिखें, राइट? तो आई थिंक उससे ही आपकी बेटरमेंट का पता लगता है। ओके, तो जॉब हंटिंग के हवाले से कि मार्केट में जो है ना स्टार्टर को जो है ना जॉब, मतलब ये कह लो इंटर्नी जो है ना, सबसे आई थिंक तो मतलब इंटर्नशिप लेना सबसे मुश्किल है। ठीक है, जबकि उसमें आपकी सबसे कम सैलरी होती है और वही आपको इंटर्नशिप लेना मुश्किल है। तो उसमें आप क्या मतलब सजेस्ट करेंगे कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से वो उनको अप्रोच करें, किस तरह से व्हाट विल बी द वे, कौन सा वे यूज़ करें जिससे उनको अच्छा रिस्पॉन्स आए? आई थिंक वाई इंटर्नशिप, वाई नॉट इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब। आई थिंक जितने भी फ्रेशर्स हैं उनको इंटर्नशिप की जगह इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब हंट करनी चाहिए। हमारे इधर फ्रेशर की सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि वो डायरेक्ट इंटर्नशिप पे मान जाते हैं। दे डिडंट कंटिन्यू और एग्री कि हम लोगों को इसके आगे जॉब भी कंटिन्यू करनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक इंटर्नीज जो है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट के साथ काम करते हैं, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया। इट्स माई ऑब्जर्वेशन। तो इसमें यही है। और आई थिंक लिंक्डइन आजकल इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म कि जिधर आपको इंटर्नशिप नहीं, अब तो फ्रेश ग्रेजुएट्स को भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स ऑफ़र हो जाती हैं। हमारी मार्केट में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में डिमांड है और आजकल तो इतने ज़्यादा रिमोट वर्क्स हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं जो फ्रेशर्स को पिक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट। तो आई थिंक अब जॉब हंट इतना ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल वे में जॉब हंट कर रहे हैं, रिक्रूटर्स को मैसेज कर रहे हैं, उनको अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको जॉब मिल जाती है। या ओके, थैंक यू जुवेरिया, थैंक यू फॉर योर टाइम
और मज़ीद आप हमारे मोटिवेशनल स्पीकर से भी पूछ सकते हैं। मज़ीद इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, कोई क्यूरीज हों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Thank you. चलो